Hello everyone. Hope you're ready to understand this new concentration term called normality. In last video we have already discussed what is equivalent mass, because to explain this particular concentration term we have to understand what is equivalent mass, then only we can understand this concept. Okay, so equivalent mass, that concept if you have understood, fine. If you have not understood, please go through the link I have given in the description box and then come to this video. Otherwise this normality part is not going to be easy for you. So I am starting with normality. Normality, as I have told you, it is a concentration term and it is somewhat like molarity. तो मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी दोनों ही कंसंट्रेशन टर्म है, बट आई विल टेक द मोलैरिटी टू मेक यू अंडरस्टैंड ओनली आई एम डूइंग दिस. मैं मोलैरिटी को नॉर्मेलिटी को समझाने के लिए आपको मोलैरिटी के पैरेलल लेके चलूँगी. ठीक है, सो आई एम डूइंग बोथ द थिंग्स टुगेदर सो दैट यू कैन सी व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी. तो मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी साथ साथ लेके चलते हैं. आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम मोलैरिटी. फर्स्ट आई एम रिमाइंडिंग यू दिस मोलैरिटी, क्योंकि ये आपको आना ही चाहिए और आई होप कि ये आता है. This is molarity. Molarity I can define it as number of moles divided by volume of solution in liter. This is called molarity. So number of moles when we dissolve in 1 liter, that number of moles gives you the molarity. So this is molarity. Normality क्या है? Normality, if I compare it like normality is, you will represent it as N, capital N. Normality is number of gram equivalents. Equivalents divided by volume of solution in liter. Okay. Now calculate number of moles. कैसे moles कैसे निकालते हैं? Number of moles equals to mass of the substance divided by molar mass of that substance. तो जिस चीज़ के लिए आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं उसका आप मास लिखेंगे डिवाइडेड बाय मोलर मास. नंबर ऑफ मोल्स कैन बी कैलकुलेटेड एज, तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स कैसे निकालेंगे? ग्राम इक्विवेलेंट्स कैन बी कैलकुलेटेड एज मास ऑफ द सब्सटेंस डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास. Molar mass we can calculate by knowing the formula. We just add the atomic masses of the different elements present in that compound and then we get the molar mass in grams, क्योंकि molar mass है, molecular mass is molar mass which is given in grams. तो ये तो कोई दिक्कत है ही नहीं है. Equivalent mass, we all know this thing. In the last video we have already studied कि equivalent mass कैसे निकालते हैं. तो you have to understand equivalent mass is equal to molar mass divided by n factor. So equivalent mass is equal to molar mass divided by n factor. And I am reminding you n factor क्या होता है? अगर आप एसिड की बात कर रहे हैं तो n factor is basicity of acid. अगर आप बेस की बात कर रहे हैं तो it is acidity of base. अगर आप सॉल्ट की बात कर रहे हैं तो it is positive और negative charge total amount of. अगर आप किसी रिएक्शन की बात कर रहे हैं फॉर अ पर्टिकुलर रिएक्शन, अगर n निकालना है आपको तो फॉर अ पर्टिकुलर रिएक्शन दैट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट और गेन, दिस इज कॉल्ड n फैक्टर. तो n फैक्टर यू विल नीड टू कैलकुलेट द इक्विवेलेंट मास एंड इक्विवेलेंट मास से आपको मिलेगा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स एंड नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स and normality of the solution will be calculated using the relationship called number of gram equivalents divided by volume of the solution given in liter. I hope very simple it becomes now. So let's apply this concept and let's find out the molarity and normality of the solution. चलिए सबसे पहले हम देखते हैं what is the normality of the solution. लिखिए 40 grams of NaOH dissolved in 1000 gram of water. ठीक, कैलकुलेट द नॉर्मेलिटी एंड मोलैरिटी ऑफ दिस सोल्यूशन. तो अगर मुझे 40 ग्राम्स ऑफ NaOH दिया हुआ है, इट मीन्स W इज इक्वल टू 40 ग्राम्स. ठीक है, व्हाट इज दिस 1000 ग्राम ऑफ वाटर, क्योंकि वाटर है आई कैन मेंशन इट एज 1000 gram equals to 1 kg and 1 kg and 1 kilogram, 1 kg and 1 liter is the same thing, क्योंकि the density of the water is given as 1 grams per centimeter cube. तो what is the volume given to you? It is 1 liter. Okay, so what is the molarity? Molarity is number of moles divided by
नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स मास अपॉन मोलर मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स मास कितना दिया है 40 डिवाइडेड बाय मोलर मास कितना दिया हुआ है आपको 40, क्योंकि इट इज़ NaOH और NaOH का 23 प्लस 16 प्लस 1, सो दिस बिकम्स 40 डिवाइडेड बाय 1 लीटर. Okay, so it becomes 1/1, that is 1 m solution. Okay, so this was NaOH, that is why molarity is 1 m. If I want to calculate the normality of the solution, molar mass, normality of the solution can be calculated as number of gram equivalents. Number of gram equivalents कैसे निकालोगे? Mass upon equivalent mass divided by volume. Equivalent mass क्या है? Equivalent mass equals to मास मोलर मास डिवाइडेड बाय n फैक्टर. अब n फैक्टर यहाँ पे कैसे पता चलेगा? बिकॉज इट इज NaOH. NaOH में हाउ मेनी OH आर देयर विच इज बीइंग रिलीज बाय दिस NaOH. कितने OH आयन निकालेगा ये 1, तो ये 1 OH इज देयर, इसका मतलब इसके लिए n फैक्टर इज इक्वल टू 1. तो मोलर मास कितना है 40, n फैक्टर कितना हुआ 1, तो इसका इक्विवेलेंट मास विल बिकम 40. इसका मतलब 40 ग्राम्स इज द इक्विवेलेंट मास ऑफ द NaOH विच इज डिजॉल्व्ड इन वाटर. तो इस केस में इफ़ यू अप्लाई दिस कॉन्सेप्ट n इक्वल्स टू मास अपॉन इक्विवेलेंट मास कर दिया आपने. मास इज व्हाट 40, इक्विवेलेंट मास इज व्हाट 40 डिवाइडेड बाय कितने लीटर में 1 लीटर, इट बिकम्स 1. यानी योर नॉर्मेलिटी and the molarity in this case is same. Reason behind I have already discussed this in last video कि जब भी आपका n factor 1 होगा molarity of the solution and normality of the solution will be same, क्योंकि equivalent mass becomes equal to the molar mass, क्योंकि molar mass divided by n factor is equal to equivalent mass. ठीक है, तो इस केस में फॉर द NaOH क्योंकि ये बात चल रही थी, ये आपका सब्सटेंस इतना, दिस इज द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, नॉर्मेलिटी एंड मोलैरिटी. ठीक है, सेम थिंग इफ आई एम डूइंग फॉर द सल्फ्यूरिक एसिड. अब आई एम टेकिंग द एग्जांपल कॉल्ड सल्फ्यूरिक एसिड. देखें, तो लेट्स टेक आउट, तो चलिए, तो लेट्स कैलकुलेट द नॉर्मेलिटी एंड मोलैरिटी ऑफ द सल्फ्यूरिक एसिड. So if I am dissolving 4.9 grams of H2SO4 in 2 liter water, calculate the molarity and normality of the solution. तो आपको molarity and normality of the solution calculate करनी है. I am starting from molarity. Number of moles मतलब W upon molar mass, mass upon molar mass divided by वॉल्यूम. मास कितना दिया है 4.9, मोलर मास इज व्हाट 98, H2SO4 2 प्लस 32 प्लस 4 इंटू 16. ठीक है, ठीक, सो दिस इज 98 डिवाइडेड बाय व्हाट वॉल्यूम इज गिवन व्हाट 2 लीटर. ठीक, तो ये बिकम्स, दिस बिकम्स नाउ 0.1 डिवाइडेड बाय 2. ठीक है, तो ये हो गया आपका 1/2 इंटू 2, यानी 0.1/4 मीन्स इट इज़ 0.025 है ना. तो 0.025 m सोल्यूशन हुआ आपका ये, या मैं ऐसे लिख दूँ 1/40 या m/40 स्ट्रेंथ का H2SO4 you have made here if you are dissolving 4.9 grams of H2SO4 in 2 liter of water. So what we have done is we have calculated the molarity of the solution and molarity is taken by 1/40. 1/40 को या तो मैं 0.025 करके लिखूँ या फिर I can write this solution as m/40 solution. Both the ways you can write down. आप 0.25 moles per liter ऐसे भी लिख सकते हो. This is the same thing. तो ये हुई आपकी molarity. अब we are going to do what is the normality of the solution. Normality निकालने के लिए number of gram equivalents. अब number of gram equivalents कैसे निकालेंगे? Number of gram equivalents mass upon equivalent mass. Okay, mass क्या है? Mass is given 4.9 डिवाइडेड बाई इक्विवेलेंट मास. इक्विवेलेंट मास कितना है? इक्विवेलेंट मास हम कैलकुलेट कर सकते हैं. इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू मोलर मास डिवाइडेड बाय n फैक्टर. n फैक्टर बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट हियर H2SO4, तो कितने H रिलीज करेगा 2, तो इसका मतलब है n फैक्टर हो गया 2, तो ये हो गया 49 ग्राम्स. तो इक्विवेलेंट मास इज 49 ग्राम्स.
नंबर ऑफ ग्राम इक्विलेंट्स वी कैन कैलकुलेट एज W अपॉन इक्विलेंट मास। मास आपको दिया है 4.9, इक्विलेंट मास कितना दिया है 49, तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विलेंट्स कितने हुए, पॉइंट हटाया 0, दिस इज 0.1, दिस इज 0.1 नंबर ऑफ ग्राम इक्विलेंट्स हो गया। नाउ जस्ट कैलकुलेट इट, नॉर्मेलिटी इक्वल्स टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विलेंट्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन, इट बिकम्स 1/20 n सोल्यूशन। लिख दीजिए 1/20 n, और यू कैन राइट इट डाउन एज ग्राम इक्विवेलेंट्स पर लीटर, दिस इज द यूनिट। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स पर लीटर, n हटाइए, नंबर ऑफ 1/20 ग्राम इक्विवेलेंट्स पर लीटर, या फिर 0.05 n solution of H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड दिस वे। तो आप जरा चेक करते हैं इसको, देखिए 0.05 n and this is what 0.025 n. So you can see here normality and molarity are different in this case. किस केस में, H2SO4 में। क्यों? क्योंकि H2SO4 is releasing 2 hydrogen when it is dissolved in the water. So the basicity of this acid is 2, that is why molarity and normality are the different, क्योंकि n factor 2 हो गया। तो can we write it as n is equal to m multiplied by n factor। करके देखें, नॉर्मेलिटी कितनी निकली आपकी 0.05 इक्वल्स टू मोलैरिटी कितनी निकली आपकी 0.025 मल्टीप्लाइड बाय एन फैक्टर कितना है 2, करके देख लीजिए 5 2 10, 5 2 10, 5 0 पॉइंट, द आंसर इज 0.05। सो इट मीन्स कि ये वाला फॉर्मूला आपको काम करेगा, दैट इज वंस यू कैलकुलेट द नॉर्मेलिटी, और आपको पता है कि व्हाट इज द नॉर्मेलिटी, यू आर गिवन अ नॉर्मेलिटी, यू कैन कैलकुलेट द मोलैरिटी यूजिंग दिस फॉर्मूला, normality equals to molarity multiplied by n factor. So this again we are having a formula, this is normality equals to molarity multiplied by n factor. अब ये n factor अगर 1 हो जाता है, simply if this becomes 1, तो इसके 1 होते ही normality equal हो जाएगी molarity के। तो normal solution and molar solution depending on कि आप क्या ले रहे हैं, इसमें stoichiometric coefficient का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। Always remember for a particular solution 2n का एक solution में लिया मैंने, उस सोल्यूशन को मुझे कन्वर्ट करना है 1n के सोल्यूशन में, तो 2n का मैं कितना सोल्यूशन लूँ सो दैट इट विल कन्वर्ट इनटू 1n का सोल्यूशन। आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे आई एम डिक्रीजिंग द कंसंट्रेशन, डाइल्यूशन बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड डाइल्यूशन। तो डाइल्यूशन के केस में वी विल यूज़ एन इक्वेशन कॉल्ड n1v1 इक्वल्स टू n2v2। तो किसी भी सोल्यूशन का इस कंसंट्रेशन का कितना वॉल्यूम लें सो दैट वी कैन गेट दिस कंसंट्रेशन और ये वॉल्यूम आपको मिल जाए, ठीक है। तो सपोज आई एम यूजिंग दिस इक्वेशन एज 3n सोल्यूशन H2SO4 का, 3n H2SO4 का कितना वॉल्यूम मैं लूँ सो दैट आई विल गेट 2n H2SO4 का 100 ml। तो व्हाट वी आर डूइंग, वी आर गोइंग टू कन्वर्ट दिस 3n H2SO4 सोल्यूशन। मेरे पास बॉटल में 3n H2SO4 है, खूब सारा है, और मुझे क्या करना है, मुझे मेरा पर्पज़ है टू मेक दिस 2n सोल्यूशन। कितना बनाना है 100 ml। तो 100 ml 2m सोल्यूशन मैं कैसे बनाऊंगी, यूजिंग दिस 3n सोल्यूशन। इन माई लैब दिस इज 3n सोल्यूशन आई एम ऑलरेडी हैविंग। इस सोल्यूशन को यूज़ करते हुए मैं कितना सोल्यूशन ऑफ दिस लूँ कि 100 ml का 2n सोल्यूशन बन जाए, दैट इज़ द क्वेश्चन। सो लेट्स डू इट, n1v1 इक्वल्स टू n2v2। तो n1 कितना दिया है आपको 3, v आपको पता नहीं है यानी मैं ऐसे v1 लिख लेती हूँ, n2 कितना है 2, v2 कितना बनाना है 100 ml। सो दिस इज v1 इक्वल्स टू 2 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। ये हो गया आपका 66.6। यानी अब मुझे क्या करना है, ध्यान से देखिएगा, इसमें से 66, यहाँ पे सब कुछ ml में चल रहा है, ये वॉल्यूम जो है दिस इज़ इन ml, यहाँ पे जो दिया है वो मैंने ml में लिया है। इसका मतलब ये हुआ कि 3n सोल्यूशन में से ये जो मेरे पास खूब सारा रखा हुआ है ना, इसमें से आई एम गोइंग टू टेक 66.6 ml, ओके। एंड फिर मैं क्या करूँगी, आई विल टेक अ बीकर, इन दिस बीकर देर आर मार्क 100, सपोज यहाँ पे लिखा है 100 ml, तो मुझे यहाँ तक फिल करना है ऐसे, लेकिन मुझे अभी चाहिए, अभी मैंने क्या लिया है 66.6, तो 66.6
3n सॉल्यूशन 66.6 ml लिया मैंने, फिर आई विल मेक इट अप टू, इसको डाइल्यूट करूँगी अप टू दिस लेवल, यानी 66.6 ml ऑफ 3n सॉल्यूशन विल बी डाइल्यूटेड अप टू 100 ml। तो टोटल 100 ml में 66 ml ऑफ 3n सॉल्यूशन है, एंड द स्ट्रेंथ ऑफ दिस सॉल्यूशन या नॉर्मेलिटी ऑफ दिस सॉल्यूशन विल बी 2n। तो क्वेश्चन फिर से सुनिए एक बार, 3nH2SO4 का कितना वॉल्यूम लिया जाए सो दैट इट विल कन्वर्ट इनटू 2nH2SO4 का 100 ml। तो 3n को कितना डाइल्यूट करें, कितना उसमें पानी मिलाएं, कितने में, सो दैट 100 ml ऑफ 2n सॉल्यूशन आपको मिले। तो हमने क्या किया, N1V1 इक्वल्स टू N2V2, दैट इज नॉर्मेलिटी इक्वेशन वी हैव यूज्ड कि 3n का कितना लें, आई डोंट नो, कि 2m का 100 ml हो जाए। तो कितना लिया, 66.6 वी हैव कैलकुलेटेड, तो वी हैव टेकन दिस अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन हियर एंड देन डाइल्यूटेड इट अप टू 100 ml। अगर वो कहते 200 में कितना हो जाए, तो फिर आई वुड हैव मेड इट इनटू 200 ml। तो दैट वे वी आर गोइंग टू चेंज द कंसंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन इन द लैब। तो लैब में कंसंट्रेशन चेंज करने के लिए दिस इज द वे, डाइल्यूशन कर रहे हैं हम यहाँ पे, क्या कर रहे हैं, डाइल्यूशन। तो नॉर्मल सोल्यूशन को, वन टाइप के सोल्यूशन को वी कैन कन्वर्ट इनटू अनदर टाइप सोल्यूशन यूजिंग दिस नॉर्मेलिटी इक्वेशन, एंड दिस इक्वेशन इज वर्किंग फॉर dilution of the acid or dilution of the base. I hope now you can understand what is normality, how to use the normality equation, how to calculate the equivalent mass, how to use this equivalent mass to calculate the number of gram equivalents. If you like this video, please hit the like button, share it and subscribe to my channel. Thank you very much.